Right, ji. Welcome to today's class. Today is our third week and first Ramzan. Naturally, we have amended the timings. Today we are conducting this class from 2 p.m. to 3:30 p.m. 1.5 hour class, and almost 18 people have joined so far. We have less time, so we will try to uh, not waste time anymore. The topics we need to cover today, naturally, we are talking about the introduction of Agile, the first chapter, and uh, I'll tell you the references. The topics we are going to cover are what is Agile. Naturally, to up to some extent, I have already talked about all these things, but naturally, we are now going to talk about these things in a little bit more detail. So, what is Agile? What is Agile versus traditional project management? Why we need to be Agile? Agile Manifesto, its values and principles, and what are the various Agile methods and roles in Agile. Naturally, for every method, there might be different roles, but overall, all these methods are basically according to Agile Manifesto. As I told you, the references we will be following is naturally the PMBOK Guide, 6th edition, Agile Practice Guide. These are two standards. Then we are also referring to Scrum Body of Knowledge, which is a very good reference, although it is not a PMI reference, but it is an outside reference. But it's a good reference as far as you want to understand the Scrum methodology. Then we have got PMI ACP exam prep by Mike Griffith, right? So this book, although this book is not available online, but my slides are prepared according to this book, right? And not only this book, but I keep adding more material to my slides from other sources as well. But primarily, I'm going to be following PMI ACP exam prep book. Okay, first question is, what is agile? As per the dictionary is concerned, agile means that you are able to move quickly and easily. In a way, you are fast and comfortable. Whatever you are doing, you can do it faster and more comfortably, right? For example, it says Rath was as agile as a monkey. So just compare yourself with a monkey. Monkey can move quite quickly and easily. It can use all its four hands and feet for climbing purposes. But we may not have that kind of ease while we move ourselves as humans. But anyways, that was just an example. There are many terminologies which are similar to agile, and in many agile methodologies, some of these terminologies are also being used. But I'm not saying that all of these terminologies are valid in agile, but at least the very first terminology, that is nimble. Nimble is one term I have seen used in agile methodologies as well. So there might be other terms like lithe, spry, supple, limber, sprightly, acrobatic, dexterous. That's all about English. So there can be a number of terms. And the exact opposite of agile is clumsy, stiff, slow, or dull. So, anyways, we do understand that agile, the word agile, means fast, quick, and you are comfortable with yourself, with your speed. You are confident and comfortable about it. That is what agile is. So
What is an agile method? If we look at it from the project management perspective, a method of project management used especially for software development. Why? Because it was invented by the software development people. That is exactly why it says that it is used by especially the software development. But I want to clarify that agile is not only meant for software engineers or the software developers. Agile can be used anywhere, all kinds of project management. So, this method of project management is characterized by the division of tasks into phases of work. Short phases of work, which we usually use to call it increments or sprints, whatever methodology you are using. So, whatever terminology is there for this, you can use that. You can call it iteration, you can call it increment, you can call it sprint or phases or whatever. This is one part that we do our work in small increments. Then, frequent reassessment. So, as we are doing in small packets of work, small parcels, so after having done that much work, we naturally are going to assess it, and therefore the whole project will be reassessed throughout the life of the project. Whenever I complete an iteration, I do the reassessment, I do the handing taking over, I do the acceptance with the review with the customer, and therefore our interaction and collaboration is there, as well as we are assessing our situation as if the next iteration could be planned even better. And adaptation of plans based on this reassessment, we should be able to plan even better, because we are going to bring these changes into our future plans. And ultimately, not only we are improving continuously, but we are accomplishing as well sustainably. Agile methods replace high level design with frequent redesign. High level design and frequent redesign. What is the difference you see? I need you to please participate and tell me, how do you differentiate between high level design and frequent redesign? जी जनाब. सर इसका मतलब ये है कि इनिशियली आप एक यानी यूं कह लें कि मोटा मोटा इनिशियल एक डिजाइन बनाएंगे, मतलब हाई लेवल डिजाइन कहते हैं, इसमें हम पूरी डिटेल्स के अंदर नहीं जाते हैं, माइन्यूट डिटेल्स के अंदर, और उसके बाद जब काम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक उसको रीडिजाइन करते जाएंगे. बिल्कुल सही है. एक तो होता है जी कि आप आम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सारे का सारा प्लान, एक मुफस्सिल तफसीली प्लान, उसकी सारी नोक पलक दुरुस्त करके सबका सब प्लान कर लेते हैं. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सब कुछ पहले से पता हो. लेकिन एजाइल में जैसा कि हम कह चुके हैं कि सब कुछ हमें नहीं पता, और नई नई तब्दीलियां आने वाली हैं, कस्टमर अपना माइंड चेंज करेगा. देयरफॉर वी आर नॉट फोकस्ड ऑन डिटेल्ड डिजाइनिंग. हम एक दफा मोटा डिजाइन जरूर बना लेते हैं, लेकिन देन वी कीप रिप्लेसिंग दैट हाई लेवल डिजाइन विद फ्रीक्वेंट रीडिजाइन आफ्टर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. छोटे छोटे इंक्रीमेंट के बाद जैसे जैसे काम करते जाते हैं, वैसे वैसे तब्दीलियां बकाया काम के अंदर, जो रह गया है काम करने वाला, उसके अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स बिल्ड होती चली जाती हैं. ना सिर्फ ये कि कस्टमर की तमाम ख्वाहिशात फुलफिल होती हैं, बल्कि हम खूब से खूब तर जी भी. वालेकुम सलाम. जी जनाब. जी ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋ ਈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਟੇਕਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ. अच्छा जी, अगली बात हम कर रहे हैं. ये तो हो गया एजाइल मेथड. Anybody who wants to put in his two pennies worth about this, have you understand this point? This is exactly the crux
of agile. जी जनाब, anyone who wants to further elaborate? जी राजिया मीर, आपका क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल। इसमें यही जो चीज़ इसको एजाइल को डिफरेंट बनाती है दूसरे प्रोजेक्ट से, वो यही है कि हम जो है ना इसको बहुत डिटेल डिजाइनिंग इनिशियली नहीं करते। इनिशियली हम एक रफ इसका ड्राफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना जो उसकी डिटेल्स होती हैं वो टाइम टू टाइम जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं उसके साथ साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बाकी जो ओल्ड टाइप की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती थी उसमें बहुत फिक्स्ड प्लानिंग होती थी और अगर उसको चेंज करना पड़ता तो बहुत मुश्किलात आती थी उसमें। जबकि इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और आप उसको जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते जाते हैं। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में इसको ब्रेक करके और बिल्कुल। उसके बाद उसमें आप उसको जो है ना चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया। अब ये देखिए कि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी उसमें भी तब्दीली लाने का कोई तरीका तो होता होगा, क्यों अहमद खुर्रम रफी साहब, आपका क्या ख्याल है? ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चेंज होती थी या नहीं होती थी? बिल्कुल होती है सर। प्रोजेक्ट तो यानी कि प्लानिंग जो होती है उससे डेविएशन तो होती है, डिपेंड परसेंटेज डिपेंड होती है जी कि जी जो डिटेल में प्लान्ड जिनकी प्लानिंग अच्छी होती थी उसमें चेंजेस कम होती हैं बिल्कुल। और यानी कि जिसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स वगैरह प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ली हुई होती थी तो उसमें चेंजेस कम होती थी, लेकिन होती थी। नहीं, कम होती तो उस सूरत में होगा ना जब कस्टमर अपना माइंड चेंज ना करे। अच्छा प्लान होना जी सर, खास वही बात नहीं है, एग्जैक्टली बात यह मैंने है। वही कहा ना कि सर कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को लिया गया हो और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो कि कस्टमर नॉर्मली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी रहता है, कस्टमर कह कुछ रहा होता है हम समझ कुछ रहे होते हैं, बिल्कुल तो उस वजह बिल्कुल, से भी काफी चेंजेस आती है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा मुस्तफा सईद साहब कुछ कहना चाह रहे थे? सर इसमें कन्वेंशनल में हम एक चीज और भी होती है, कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर अगर आपसे एग्री है चेंज होने में तो फिर आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जी, वरना जो कस्टमर का इनिशियल डिजाइन है उसी पे आपने रहना है। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट और आपने बताया। एजाइल में ये होता है कस्टमर आपके साथ हर पॉइंट पे लूप इन होता है और वो आपको हाँ बताता है, तो फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मतलब ये कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में तब्दीली लाने का एक बहुत वाजे मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसको चेंज रिक्वेस्ट या चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं, और उस चैनल में अपनी चेंज रिक्वेस्ट डाले बगैर कोई प्लान को अमेंड नहीं कर सकता। मतलब बड़ा सख्त माहौल है, वहां तब्दीली नहीं लाई जा सकती जब तक कि वो प्रॉपर उस मेथड या उस प्रॉपर मैकेनिज्म से ना गुजरे, और वो एक बड़ा कभी कभी होने वाला काम है। मतलब वहां फ्रीक्वेंट चेंजेस अकोमोडेट शायद नहीं की जा सकती, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस तो हर जगह अलाउड होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि सर्टेनिटी प्रोजेक्ट में कभी होती नहीं है। Even in traditional projects, we used to make changes, but that was through a proper change request procedure या change control mechanism. अब हम बात कर रहे हैं कि जहां हर चीज हर वक्त चेंज हो सकती है, ऐसे माहौल में काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये, हमने कहा कि अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर वो जो डिटेल प्लानिंग छोड़नी पड़ेगी, हमें वो जो चेंज रिक्वेस्ट का मैकेनिज्म था उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें एक नया मैकेनिज्म, एक नया माइंडसेट इवॉल्व करना पड़ेगा, और वो ये एजाइल वाला मेथड है। तो एजाइल मेथड जो है, ये तो एक जनरली बात कर दी हमने कि एजाइल मेथड है, लेकिन दरअसल ये उसने क्रक्स बयान कर दिया एजाइल मेथड का। अब मेथड्स तो बहुत से हैं, वो जो मैनिफेस्टो मैं बताऊंगा आपको और जो बता चुका हूं पहले भी, उस मैनिफेस्टो के साथ अलाइन रहते हुए कोई भी मेथड बनाया जा सकता है, लेकिन वो उन 4 वैल्यूज और 12 प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जा सकता। करिए अल्लाह का शुक्र। रिजवान साहब, आप अगर अपना माइक बंद कर लीजिएगा। जी थैंक यू। हो जाए कि यार ये एजाइल तक हम पहुंचे कैसे हैं। एजाइल डेवलपमेंट जो है
वो क्या करती है कि एक एम्ब्रेला टर्म के तौर पे इस्तेमाल की जाती है बहुत से आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज के अंदर। मतलब डेवलपमेंट का लफ्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से निकला है, और चूंकि ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, तो उन्होंने जब ये तेज काम करना शुरू किया, जब फास्ट काम करना शुरू किया, तो उन्होंने उसको एजाइल डेवलपमेंट कहना शुरू कर दिया। तो एजाइल डेवलपमेंट इस टर्म के हिसाब से तो लगता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही के लिए है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूं, मैं इस डेवलपमेंट के लफ्ज को चेंज करके, आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं मैं एजाइल कंस्ट्रक्शन कह दूं या एजाइल इंजीनियरिंग कह दूं, तो कहने का मकसद है कि इसको हम किसी और टर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी मैं बिल्कुल लिटरल वैल्यू में, लिटरल टर्म्स में बात कर रहा हूं कि एजाइल डेवलपमेंट जिस तरह हो सकती है, इसी तरह से हम एजाइल को और फील्ड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो अंदरूनी निजाम क्या होगा, कैसे होगा, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन मैंने एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रख दी कि अगर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, तो कोई भी चीज एजाइल हो सकती है। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम अपने माइंड सेट से जब बाहर निकलते हैं और नया माइंड सेट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे जनरली इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। हम एक लगा बंधा तरीका स्टेटस क्वो पे चल रहे हैं, और हम कहने जी इंजीनियरिंग एजाइल हो सकती है, तो एक बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। सारे इंजीनियर्स उठ के खड़े हो जाएंगे, ये क्या बात कर रहे हो, ये कैसे एजाइल हो सकती है। तो मतलब ये है कि अभी हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी तैयार करनी है, और हमें इस बात के लिए तैयार होना है कि हम अगर एजाइल होना चाहें, अपने कामों को एजाइल करना चाहें, तो क्या हम कर सकते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स के दौरान या इसके बाद ये महसूस करने के काबिल हो जाएंगे कि वाकई हर चीज एजाइल हो सकती है। तो बहुत सी मेथोडोलॉजीज एजाइल की सामने आई, वो जो हमने डिफाइन किया है, अब वो नेचुरली सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के हिसाब से होंगी। तो एक चीज थी जी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सपी के नाम से इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा। इसी तरह स्क्रम, स्क्रम तो अभी भी बहुत पॉपुलर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बाकी सब चीजें हैं ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रम सबसे आसान और सिंपलेस्ट एजाइल मेथोडोलॉजी है, और इसको अ, किसी मतलब सबसे ज्यादा मार्केट में इस्तेमाल हो रही है, मतलब मेजॉरिटी स्क्रम को इस्तेमाल करती है। और मजे की बात यह कि कई दूसरे मेथोडोलॉजीज जो इधर लिस्टेड हैं या नहीं भी लिस्टेड हैं, वो भी अपने अंदर स्क्रम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। तो स्क्रम हैज ग्रोन लार्जर देन लाइफ, और मिसाल के तौर पर डिसिप्लिन एजाइल सबसे आखिरी वाला, स्केल्ड एजाइल, उसके अंदर भी स्क्रम है, डिसिप्लिन एजाइल में भी है, और भी कई जगहों पे आपको उसके निशानात मिल सकते हैं। तो स्क्रम एक तो वाइडर देन लाइफ है इन सब में, या इनमें से अक्सर में इस्तेमाल हो सकता है, और दूसरी उसमें खसूसियत यह है कि स्क्रम एक आसान और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है जो कि कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि स्क्रम को पढ़ के आपको एजाइल का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से बाहर करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा क्लियर नजर आती है, क्योंकि बाकी जितने मेथड हैं वो काफी ज्यादा बंधे हुए हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ। जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग तो कंप्यूटर में होती है। फिर डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, इसमें भी डेवलपमेंट का जिक्र आया। फंक्शन ड्रिवन डिप्लॉयमेंट, इसमें भी जो डिप्लॉयमेंट वाला सिस्टम है ये अमूमन सॉफ्टवेयर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन खैर इनसे हम कुछ जूस निकालेंगे सब जगहों से। एक चीज थी लीन डेवलपमेंट, जो कि सॉफ्टवेयर की मिरास तो नहीं थी, लेकिन सॉफ्टवेयर ने उसको भी अडॉप्ट किया अपने अंदर, इसका फायदा सॉफ्टवेयर ने भी उठाया। लेकिन लीन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एज सच सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये है मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है लीन का। और लीन ये कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं
उसको इतना ज्यादा एफिशिएंटली करें कि उसमें वेस्ट या जो जो बचा कुचा माल होता है, वेस्टेज जो है वो जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो वेस्टेज हो, तो आपकी लाजमी बात है क्वालिटी बेहतर होगी। सो लीन का ताल्लुक काफी हद तक क्वालिटी के साथ भी है, एफिशिएंसी के साथ भी है, और एजाइल भी इसको पसंद करता है, और लीन और एजाइल को मिला के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपने ये देखा कि लीन डेवलपमेंट का भी एक मेथड है, और लीन को हम स्क्रम में भी इस्तेमाल करते हैं, लीन को हम और भी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो लीन और स्क्रम जो है, ये दो चीजें, या यूं कह लीजिए लीन और एजाइल को इकट्ठा इस्तेमाल करने से हमें काफी फायदे हो जाते हैं। फिर और भी मेथड थे, फंक्शन ड्रिवन डिप्लॉयमेंट था कि आपने जो जो फंक्शनैलिटीज लानी है उन फंक्शंस की प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया जाएगा, तो फंक्शन ड्रिवन डिप्लॉयमेंट होगी। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि किस तरह हम आइटरेशन बाय आइटरेशन कुछ फंक्शंस पैदा करते जाते हैं, डिलीवर करते जाते हैं। तो तकरीबन ये वही बात है, लेकिन उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर जनाब फंक्शंस हैं, फिर फीचर्स ड्रिवन डिप्लॉयमेंट है, ये भी आईटी की तरफ से आई है, और इसमें और भी हैं। मतलब ये जो लिस्ट आपके सामने मैंने रखी है, ये कोई जामिया लिस्ट नहीं है, इसमें और भी काफी सारे मेथड हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है डीएसडीएम, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, ये यूके में बहुत पॉपुलर है। और इसके अलावा टीडीडीडी और कुछ और मेथड भी हैं जो शायद आगे नाम आएगा, वो भी इसके अंदर चलते रहे। खैर, थोड़ा सा आ जाते हैं आज के दौर के अंदर। आजकल चूंकि अब हम स्केलेबिलिटी की बात करने लग गए हैं, एजाइल को जनरली इंटरनेशनली ग्लोबली मार्केट ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। सॉफ्टवेयर में तो पहले से था, अब सॉफ्टवेयर से बाहर भी करना शुरू कर दिया है। तो अब एजाइल का और ज्यादा यूजेज आ रहा है, और वो है कि एजाइल तो स्मॉल टीम्स में काम कर सकती है, तो क्या ये बड़े लेवल पे कैसे काम करेगी? तो उसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए स्केल अप किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्क्रम मास्टर और एक प्रोडक्ट ओनर तो एक स्क्रम टीम के लिए है ना, एक स्क्रम टीम से काम कराने के लिए इन वेरियस आइटरेशंस। लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट आपका ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा टीम जो है वो साइमल्टेनियसली काम करेंगी, तो देन इट इज नो मोर स्क्रम, ये स्क्रम से कुछ बढ़ के हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है कि फर्ज करें 10 टीमें हमारी काम कर रही हैं, उनके सबके अपने अपने स्क्रम मास्टर और अपने अपने प्रोडक्ट ओनर होंगे, लेकिन वो सब जो हैं एक बड़ी स्कीम का हिस्सा होंगे। उन 10 टीमें जो हैं वो जिसको जवाबदेह होंगी, वो चीफ प्रोडक्ट ओनर होगा, जो स्क्रम मास्टर्स का जो चीफ होगा वो चीफ स्क्रम मास्टर होगा, और इस तरीके के साथ एक स्केल अप हो जाएगा। इसी तरह इसको मजीद और भी स्केल अप किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं, जो जब दो लेवल्स होते हैं तो निचले वाला लेवल स्क्रम और ऊपर वाला लेवल स्क्रम ऑफ स्क्रम, और जब 3 हो जाते हैं तो उसे कहते हैं स्क्रम ऑफ स्क्रम ऑफ स्क्रम। तो मतलब ये है कि ये स्केलिंग हो रही है, इसको हम स्केलेबिलिटी कहते हैं। मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, ये तो खैर हम स्क्रम वाला तरीका बता रहे हैं, स्क्रम ऑफ स्क्रम और स्क्रम ऑफ स्क्रम ऑफ स्क्रम, और इस तरह जितने मर्जी लेवल आप बना लें। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत ज्यादा डीप लेवल भी नहीं होने चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा कि क्या हो तो हम किस लेवल पे जाएंगे। इसलिए स्केलेबिलिटी के कंसेप्ट तो स्क्रम में भी है और भी जगहों पर है, लेकिन स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क जो सेकंड लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है, इन लोगों ने इसको बकायदा फॉर्मलाइज किया कि अगर ऐसा हो तो इसको ऐसे किया जाए, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए तो उसके अंदर इतनी टीमें करके इस लेवल पे ले आया जाए, प्रोग्राम का लेवल हो, पोर्टफोलियो का लेवल हो, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल हो। तो उन्होंने बाकायदा इसके फ्रेमवर्क्स बना दिए स्केल्ड एजाइल के। तो वो ये भी बड़ा आजकल पॉपुलर जा रहा है। लेकिन एक बात बताऊं कि जो ईज आपकी स्क्रम में थी, वो जब ये इसको इस तरह के फ्रेमवर्क्स बनाते हैं तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीजें। तो एक आम आदमी जो कि आसानी से स्क्रम को अंडरस्टैंड करता था, उसके लिए स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क या इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, मजे की बात ये बताई मैंने आपको कि इवन स्केल्ड एजाइल वाले जो हैं, स्केल एजाइल फ्रेमवर्क जो सेफ जिसे कहते हैं, वो लोग भी स्क्रम की सर्टिफिकेशन करवाते हैं। उनका होता है स्केल्ड स्क्रम एजाइल।
अच्छा, तो ये जब ऐसी बात है तो फिर उसका फ्रेमवर्क भी वो पढ़ाते हैं, वो भी चीज करते हैं। तो एक तरह से आपको उसका फायदा तो होता है कि आपको एक बेस काम करना आता है और फिर आपको उसको बड़े लेवल के ऊपर स्केल अप करना भी आता है। लेकिन जब ये इतना सारा कुछ हो गया और हर एक ने अपने अपने रंग और नस्ल की चीजें बना दी, तो ये एक नई बॉडी उठ के सामने आई, डिसिप्लिन एजाइल डिलीवरी वाले। इनको अब सिर्फ ये अपने आप को डिसिप्लिन एजाइल कहते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एजाइल तो एक हाईली फ्लेक्सिबल चीज थी। आप जब उसकी फ्रेमवर्क्स बना देते हैं, जब उसके तरीके बना के बांध देते हैं, तो ये तो एजाइल ना हुआ, ये तो आपने उसको और ज्यादा रिजिड कर दिया। तो वो रिजिडिटी के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई, डिसिप्लिन एजाइल वालों ने। उन्होंने कहा जी बात ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एजाइल एजाइल ही होना चाहिए। आप कोई भी चीज कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन किसी एक डिसिप्लिन के तहत एक बेसिक प्रिंसिपल आप रख लें कि ये हमारा डिसिप्लिन होगा। और कोई भी मेथोडोलॉजी जो ऊपर दी हुई है या इसके अलावा भी कोई हो सकती है, कोई भी मेथोडोलॉजी किसी भी वक्त आप अपने एजाइल प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू डोंट, आप इसमें घबराएं मत। इवन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी डिसिप्लिन एजाइल में हो सकती है, और एफडीडी भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है, स्क्रम भी हो सकता है, क्रिस्टल भी हो सकता है। मगर उसका उन्होंने तरीका बताया कि जनाब किस तरीके के साथ आप उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। अदर इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ऑल्दो डिसिप्लिन एजाइल वाले कहते हैं हम कोई फ्रेमवर्क नहीं दे रहे, लेकिन ये सब कुछ बयान करते करते, मैं इनकी किताब मैंने पढ़ी है और वो मैं आप कहेंगे तो आपसे शेयर भी कर लूंगा। मैंने ये महसूस किया कि ये लोग उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए जितना स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क है। तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ये कैविएट नजर आता है कि बेहतरीन असूल एजाइल का यही है, कीप इट सिंपल, खत्म बात। आपको कंफर्ट होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और आप बस जो मर्जी करें और तेजी से करें। तो मेरे हिसाब से वो बात दुरुस्त है कि स्क्रम ही लीड करेगा सब कुछ। आप भले आपको स्क्रम कहें या कोई और नाम देना चाहें, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन स्क्रम सबसे आसान, समझ आने वाला और तेजी से अडॉप्ट किया जाने वाला एक मैकेनिज्म है। अच्छा, इसको थोड़ा आगे फीचर्स की पहले बात, तो मैं देख हैं, ओके, each of the agile method is unique in its specific approach। अच्छा, आप जी इस सर। बात से नहीं घबराना कि जनाब ये तो सॉफ्टवेयर का जिक्र बीच में कहीं आ गया। आपने ये समझना है कि भले सॉफ्टवेयर का जिक्र आ गया है, लेकिन ये उस जमाने में जब ये चीजें लिखी गई थी, उस जमाने में सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी। अब आप ये समझें कि आपके टेलीकम्युनिकेशन में या वट एवर इज योर एरिया ऑफ उसकी बात हो रही है, और ये आप लोग हैं जो आपने एजाइल को अडॉप्ट करना है अपने अपने एरिया के। खैर, तो हमने कहा कि इट विल बी यूनिक टू स्पेसिफिक अप्रोच। जो जिस तरीके जो काम आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, हो सकता है हम कंस्ट्रक्शन में रहते हुए कोई एजाइल मेथड डेवलप करने, जैसे स्क्रम है, कोई और है, कोई अपना नाम कोई रख दें, वेरी वेरी पॉसिबल, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। बल्कि मैं तो ये बताऊंगा आपको कि ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं, और वो आज से नहीं अवेलेबल बल्कि मुद्दतों से अवेलेबल हैं। मतलब मैं इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिख रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हम एजाइल किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आप यकीन कीजिए, मुझे 70s में इसका ट्रेस मिला। एक मेथड जिसका नाम, कंस्ट्रक्शन का मेथड है जिसका नाम है लास्ट प्लानर सिस्टम, वो दरअसल आज आजकल उसको लीन कह के इस्तेमाल किया जा रहा है, लीन कंस्ट्रक्शन लास्ट प्लानर सिस्टम। और दरअसल जब मैं उसको पढ़ता हूं और देखता हूं और उसका मैकेनिज्म समझता हूं,
तो वो मुकम्मल तौर पे एजाइल है। वो जो यहाँ पे आपने अभी पढ़ा लीन वाला सिस्टम, वो दरअसल लीन में और एजाइल में काफी कदरें मुश्तरक हैं। जब इन दोनों को मैरी अप कर दिया जाए तो इन दोनों में फर्क बहुत कम रह जाता है। तो खैर, मैं सिर्फ ये साबित करना चाह रहा हूं कि इवन इन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन या अदर फील्ड्स दिस इज पॉसिबल। और आप भी जब इस काम को एज अ माइंडसेट लेंगे कि मैंने माइंडसेट को चेंज करना है, तो खुद व खुद रास्ते निकलेंगे। सो आप यूं समझिए कि आपको मैंने एक लीगो का सेट दे दिया है और आपने उससे खुद कुछ बनाना है अपने फील्ड के हिसाब से। लेकिन जो कुछ काम हो चुका है, जो लीगो से जो आज तक डिजाइन बन चुके हैं, वो आपको पता है, और उनकी रेबरी में रहते हुए आप अपना खुद से कुछ डिजाइन कर सकते हैं। एनीवेज, मगर एक बात जो इन सब मेथड्स में या आने वाले फ्यूचर मेथड्स में व्हाटएवर कॉमन होगी, वो होगा एजाइल मैनिफेस्टो। इनका एक कॉमन विजन है और कोर वैल्यूज है। वो कोर वैल्यूज, वो 4 वैल्यूज जो मैंने आपको बताई थी और मैं दोबारा बयान कर दूंगा, वो इसका एजाइल मैनिफेस्टो। तो एजाइल मैनिफेस्टो पे अब तक इत्तेफाक है। उसमें भी थोड़ी बहुत तब्दीलियां होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे एजाइल मैनिफेस्टो में आपको मैंने बताया कि जहां पे सॉफ्टवेयर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो जो वो कहता है जी कि वर्किंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो हमने कहा कि चलो सॉफ्टवेयर ना कहो, इसको प्रोडक्ट कह दो। ठीक है जी। इस तरह से थोड़ी बहुत उसको अगर हम स्मूदन आउट कर लें तो ये एजाइल मैनिफेस्टो बिल्कुल सही है। दे आल फंडामेंटली इनकॉर्पोरेट आइट्रेशंस। ये सारे मेथड, जितने भी मेथड्स हैं, दे बेसिकली वो छोटी आइट्रेशन के चक्कर में है, और हर आइट्रेशन के बाद कॉन्टिन्यूस फीडबैक भी देते हैं। एंड देन दे दे प्रोवाइड टू सक्सेसिवली रिफाइन एंड डिलीवर। आपका जो कोई भी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर को छोड़ दें, जो कोई भी सिस्टम है, उसको खूब से खूबतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। पहली बात, आप छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर रहे हैं, हर टुकड़े पे जब काम कर लेते हैं तो उसके ऊपर बाकायदा एक्सेप्टेंस लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, और उसकी रोशनी में आइंदा आने वाली आइटरेशंस में वो इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। मतलब तब्दीली, अडाप्टेबिलिटी आपके अंदर मौजूद है। बस ये वो चीजें हैं जो आपको अगर समझ आ जाएं तो फिर कोई मेथड की जरूरत नहीं है, आप अपना मेथड खुद से भी डिवाइस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल, तो मुझे उनसे guide देगी। मैं existing ही adopt करने से मतलब मुझे उसको मैं चेंज होगा तो तो जी सर, कौन बोले? सही, तली रजा साहब। सर जी, बोले बोले। जी जी सर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने सिर्फ सलाम करने के अच्छा लिए सर, होगा? वो एक्चुअली ऑलरेडी मीटिंग्स चूंकि स्केड्यूल थी, मैंने अभी ज्वाइन इन किया है, तो अच्छा अच्छा, सर आवाज गायब हो गई जी आपकी। ऑलरेडी एक्चुअली मीटिंग स्केड्यूल थी ना, मैं भी फ्री हुआ हूँ, मैंने भी 2:30 पे ज्वाइन इन किया, तो अगर आप काइंडली फर्स्ट 30 मिनट्स या 40 मिनट जब से भी आपने स्टार्ट किया है, उसका थोड़ा सा हमें सम अप कर देंगे ताकि हमारी कंटिन्यूटी स्टैब्लिश हो जाए। जी क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं बहुत ज्यादा चीजें हमने कवर नहीं की, हम बिल्कुल वही बुनियादी बातें जो हम पहले भी कर चुके हैं वही हमने इसको देखा। मैं आपको ले जाता हूँ पिछली स्लाइड जिनको हमने डिस्कस किया है।
यू वेरी मच। थैंक यू। हम चीज कवर करने जा रहे हैं वो ये 4-5 टॉपिक हैं। एजाइल क्या है, एजाइल और ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या फर्क है, एजाइल क्यों इस्तेमाल किया जाए, एजाइल मैनिफेस्टो जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जाए, और एजाइल के मेथड्स और उसके वेरियस रोल्स क्या होते हैं। इसलिए तो मैंने पीएमबीओ के एजाइल प्रैक्टिस गाइड, फिर ये माइक ग्रिफिथ की लिखी हुई किताब है पीएमआई एसीबी एग्जाम प्रेप, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल नहीं है, मगर मेरी स्लाइड जो है वो उसके मुताबिक बनी हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है उसके लिए भी। फिर जनाब स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज मैंने इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है और मैंने इसको आपको दिया हुआ है। पहली बात है और आसानी से, तो clear आप ये समझिए हम आम तौर पे जो काम करते हैं उसको अगर तेज करने के लिए तेज करें तो एक तो टेंशन हो जाती है ना आपको, आप कहते हैं यार टेंस माहौल में आप काम कर रहे हैं, टेंस भी नहीं होना, ऐसा तरीका निकालें कि काम भी तेज हो और आप भी कंफर्टेबल हो, मतलब आप को कोई टेंशन ना हो कि ना ये खराब हो जाएगा। तो मतलब ये है कि ये वो माइंडसेट है जो हम तब्दीली। तो एजाइल का जो मेथड है जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि इसमें ऑल्दो ये सॉफ्टवेयर में बात की जाती है लेकिन सॉफ्टवेयर को बाहर फेंक दें आप, भूल जाएं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ये इजाद हुआ था, बट इसके अंदर कामों को छोटे ब्रैकेट्स में बांटना, मतलब इंक्रीमेंट्स बनाना, फिर हर ब्रैकेट में उसकी बाकायदा रीअसेसमेंट करवाना, कस्टमर के साथ जाके बात करना और रीअसेसमेंट करवाना, मतलब एक्सेप्टेंस करवाना उसकी, और फिर उसकी फीडबैक आना, और उसके उसके मुताबिक हम अपने प्लान्स को अमेंड करते हैं और अगली जो आने वाली हमारी आइटरेशन होती है उसको उसके हिसाब से डालते हैं। तो एजाइल मेथड्स जो हैं वो मोटी मोटी प्लानिंग जो आपने शुरू की थी उसको हर आइटरेशन के बाद रीडिजाइन करने का मौका फराहम करता है, और एज कंपेरेबल टू जो आपका प्रिडिक्टिव या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर आप सारा प्लान एक बार बना लेते हैं और फिर कहते हैं नो चेंज, और अगर चेंज लानी हो तो एक बड़ा सख्त किस्म का आपने चेंज कंट्रोल का मैकेनिज्म बनाया होता है, जो कि गलत नहीं है, लेकिन जहां चेंजेस बहुत ज्यादा ना आनी हो और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ना आनी हो वहां तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ नहीं। अगर आपका माहौल एजाइल है तो एजाइल में बड़ा काम हो जाएगा। एजाइल डेवलपमेंट नॉर्मली को जैसे मैं कुछ भी है और आपको फिर सेपरेट आइडेंटिटी और क्रिएटेड वर्क को में को आप एक तरीका बनाते हैं, आपने बनाने जो तरीके जो वो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जो वो के जो है जो करती है, मतलब सिंस एजाइल केम टू ये नहीं कह रहा कि ये चंद है सारी मेथोडोलॉजीज हैं, बल्कि ये कुछ चंद मेथोडोलॉजीज हैं, इनके अलावा भी बहुत सी हैं। मेरे पास एक बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी बनी हुई है जिसके अंदर कोई 20-25 इस तरह की मेथोडोलॉजीज हैं जिनको डिस्कस किया गया और इनकी पूरी हिस्ट्री है।
लेकिन मैंने उस हिस्ट्री में से कशीद करके वो आइटम्स जो मतलब काम के हैं वो आपके सामने रखे हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, बहुत पुराना मैकेनिज्म है। ये जब काम जिस जमाने में बहुत तेज काम किया जाना होता था और आईटी में जब ये शुरू में इस सिलसिला हुआ, उन्होंने कहा जी ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, बहुत ज्यादा तेज काम करो, 10 टाइम्स फास्ट काम करो। तो उसके लिए उन्होंने कुछ असूल और ज़वाबित बनाए, तो ये एक्सपी मेथोडोलॉजी बन गई। स्क्रम शुरू से ही बन गया था और ये भी बहुत ही फाल और बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म है। और इसकी खूबसूरती ये है कि तमाम एग्जिस्टिंग एजाइल मेथोडोलॉजीज में ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है। और इतना आसान सिस्टम है कि बाकी मेथोडोलॉजीज भी इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्तेमाल कर लेती हैं। फिर एक क्रिस्टल है, जो कि क्रिस्टल बिल्कुल एक अलग जिसे कहते हैं ट्रेडमार्क टाइप की चीज है। क्रिस्टल मेथोडोलॉजी बड़ी और छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, क्रिस्टल में वेरियस लेवल्स ऑफ क्रिस्टल बनाए, लेवल्स कह लें या कलर्स कह लें, कि सबसे छोटा सा अगर काम करना है तो आप क्रिस्टल क्लियर करेंगे, अगर थोड़ा और है तो वो फिर क्रिस्टल कोई और कलर हो जाएगा, और जितना जितना कॉम्प्लिकेट होता जाता है उतना रंग उसका डार्कर होता जाता है। खैर, फिर जनाब डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड है, ये यूके बेस्ड है। फंक्शन ड्रिवन डिप्लॉयमेंट है कि आपका जो ऑपरेशंस हैं वो चंद फंक्शंस को पूरा करेंगी। फिर इसी से रिलेटेड फीचर ड्रिवन भी आ गया। फिर लीन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। स्केल्ड एजाइल, ये वो मैकेनिज्म है जिसमें आप कहते हैं एजाइल के ऊपर एजाइल, मतलब एक तो टीम एजाइल काम कर रही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा टीमें करें उनको कौन देख रहा है, तो अगर उसके ऊपर भी कोई देखने वाला है तो इसको हम स्केल्ड एजाइल कहेंगे। और अगर उससे मजीद ऊपर है तो भी स्केल्ड में रहेगा। तो स्केल्ड एजाइल के फ्रेमवर्क में वेरियस लेवल्स हो सकते हैं, और आप उसको फिर स्क्रम में भी होता है। स्क्रम में हम कहते हैं स्क्रम अगर 10 टीमें हैं और उनका तो हर एक का अपना अपना स्क्रम मास्टर है, लेकिन उन स्क्रम मास्टर्स किसको जवाबदेह है, वो होता है चीफ स्क्रम मास्टर, और इस लेवल को कहते हैं स्क्रम ऑफ स्क्रम। इसी तरह इट कुड हैव इवन अनदर लेवल और इस तरीके के साथ। तो स्केल्ड एजाइल ने बाकायदा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर एक फ्रेमवर्क्स दिए कि जनाब इतना साइज हो, ऐसा हो तो उसको निचले लेवल पे करें, इतना बड़ा हो तो उसको इस लेवल पे करें। इन्होंने लेवल्स बना दिए प्रोजेक्ट के लिए, प्रोग्राम के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, वगैरह वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क है, बहुत फेमस है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई। उसके बाद जैसे मैं बता रहा था डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी है। डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी लेटेस्ट है। अगर मतलब आप इस पूरी साइंस को देखें तो आज तक जो सबसे लेटेस्ट चीज आई है वो डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी है। और ये जो डिसिप्लिन्ड एजाइल डिलीवरी है ये भी पीएमआई ने खरीद ली है, मतलब पीएमआई ओन्स इट। मतलब जैसे एसीपी की सर्टिफिकेशन पीएमआई की तरफ से है, तो डिसिप्लिन एजाइल की जितनी सर्टिफिकेशन हैं, 4-5 सर्टिफिकेशन हैं, वो सब की सब पीएमआई ही की तरफ से हैं, क्योंकि पीएमआई ने इस कंपनी ही को खरीद लिया। एनीवेज, तो डिसिप्लिन एजाइल एक और मैकेनिज्म है जो इम्प्रूवमेंट है स्केल्ड एजाइल के ऊपर, क्योंकि वो कहता है डिसिप्लिन एजाइल में कि हम इतना रिजिड सिस्टम नहीं बनाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि एजाइल एजाइल ही रहे, आजाद रहे एजाइल। मतलब एजाइल मेथड के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। अब जैसे मैं आपको बता रहा था वो स्क्रम, अब स्क्रम के भी बहुत सारे हैं। स्क्रम तो है ना एक जनरल मेथड, स्क्रम को कई लोगों ने कितने रंगों में बनाया हुआ है। अब इसमें से एक वो किताब है जो मैंने आपको दिखाई है, वो है अपना स्क्रम स्टडी वालों की। इस तरह स्क्रम अलायंस वाले हैं, फिर scrum.org वाले हैं, पता नहीं कौन कौन से, कितने सारे स्क्रम की बॉडीज हैं जो स्क्रम की सर्टिफिकेशंस करवाती हैं। तो कुछ ने प्रोसेसेस बना दिए हैं। अब डिसिप्लिन एजाइल ये कहता है कि आजाद छोड़ दो और उसको टेलर करो अपनी जरूरत के स्पेसिफिक क्यों
मैनिफेस्टो की पाबंदी उस मुताबिक काम के ऊपर पाबंदी के बाद जो पहले शुरू भी आती है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मोहित साहब बोले। जी मोहित साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? सर वॉइस आपकी बड़ी काफी डिस्टॉर्ट हो रही है। सर वॉइस आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत ज्यादा। ओहो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने कोशिश तो बहुत की है। मुझे मुझे वैसे इसकी रीजन मिल गई है कि ये वॉइस क्यों डिस्टॉर्ट होती है। रीजन बेसिकली ये है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर हमें वो वाईफाई के राउटर्स देते हैं, वो इतने की घटिया नस्ल के हैं। मेरे पास 2 लगे हुए हैं, पीटीसीएल भी लगा हुआ है, स्टॉर्म फाइबर भी लगा हुआ है। उनकी रेंज 10 फुट से ऊपर नहीं होती। तो अगर तो आपने उसी कमरे में लगाया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन ये जरा सा दूर है तो ये मुझे मुसीबत पड़ी है। मैं आई एम ट्राइंग टू बाय अनदर राउटर जो मैं उससे आगे लगाऊंगा, ज्यादा जो कवरेज करेगा, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये मसला। लेकिन मैंने अभी तो सब दरवाजे वगैरह भी खुले छोड़े हुए हैं कि कहीं सिग्नल रुक ना जाए कहीं से। तो आई होप कि आज प्रॉब्लम जरा निस्बतन कम होगी पहले के मुताबिक। तो ओके, ये बात हो गई जी, बिल्कुल सही है आपका आर्गुमेंट, और ये इंशाल्लाह इसको भी मैं दूर करूंगा। तो हमने ये तो जनाब यहाँ तकरीबन कवर आगे चलते हैं। जितने भी मेथड हैं टेस्टिंग एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस सॉल्यूशन बहुत कीजिएगा। हम नहीं आ रहे। आप प्लान और हर कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग और कॉन्टिन्यूस मुझको करके वो है रिलीज देते हैं, डिलीवरी के बाद में उस सिस्टम जाए और is not only for this project, we can be the for अच्छा, फिर आ जाते हैं जी एक लाइट वेट सिस्टम्स होते हैं और एक हैवी वेट सिस्टम्स होते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो एक हैवी वेट सिस्टम है, वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। मतलब तैयारियां और बड़े लंबे प्लान और प्रोसीजर्स और वगैरह वगैरह, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा होती है ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर, के
उसको हम वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं कि पानी की आबशार की तरह पानी एक दफा जब नीचे आता तो ऊपर नहीं जा सकता, बह गया तो बह गया। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, जब लाइट वेट मेथड आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो यू आर जस्ट लाइक एयर, यू आर नॉट लाइक वाटर, यू आर लाइक एयर, यू कैन मूव फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। अगर पीछे गलती होगी जल्दी से आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपका वजन इतना कम है, यू आप सो लाइट वेट कि आपने बहुत ज्यादा चीजों को की परवाह नहीं करनी। आपका थोड़ा सा एक सेट है जो आपने काम किया है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो वो ठीक है, अनडन भी हो सकती है। ऑल आर इनहेरेंटली एडाप्टेबल। जितने मेथड आपको यहाँ नजर आएंगे वो हाईली अडॉप्टेबल है, ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड एग्री दैट सम आर मोर अडॉप्टेबल देन अदर्स। ठीक है ना, जो मिसाल के तौर पे ये स्क्रम जो है ये सबसे लाइट वेट है, बाकी भी आते तो एज अ एजाइल सारी मेथोडोलॉजीज लाइट वेट ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हल्की फुल्की है वो स्क्रम है। उसके अलावा बाकी भी कुछ ना कुछ लाइट वेट तो हैं, लेकिन जैसे मैंने सेफ बताया आपको, सेफ काफी हैवी ड्यूटी हो जाता है, ऑल्दो इट इज स्टिल एजाइल। बाकी मेथड से तो बहुत ज्यादा मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन एज सच विद इन द कैटेगरी ऑफ एजाइल वो जरा हैवी हो जाता है। दे ऑल फोकस ऑन एम्पावरिंग पीपल टू कोलैबोरेट एंड मेक डिसीजंस टुगेदर क्विकली एंड इफेक्टिवली। ये वो माइंडसेट की तब्दीली थी जिसमें हमने लीडर का रोल बदल दिया, सर्वेंट बना दिया उसको, लोगों का रोल बदल दिया और उनको मालिक बना दिया। खुद सोचो, खुद करो और खुद फैसले भी करो। कोलैबोरेशन को बहुत ज्यादा इज्जत दे दी। इन तमाम चीजों ही की वजह से हम काम ज्यादा तेजी से और ज्यादा इफेक्टिवली करने के काबिल हुए। ये बात सिर्फ इतनी है कि आप इग्नोर कर दें एजाइल को तो कर दें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस तरह आप ट्रेडिशनली काम करते हैं इसको 10, 20, 100 गुना तेज भी किया जा सकता है, जो कि आप नहीं मानेंगे। जो बंदा ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वाटरफॉल के तरीके से काम करने का आदी हो, उसका माइंड ट्यून अप ही नहीं है ये समझने के लिए कि इसको हम कैसे क्रिएटिवली आउट ऑफ द बॉक्स जाके खूब से खूब तर की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको वो माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर किस तरह को फिर कहते हैं जी, बहुत से जो इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं दैट आर प्रमोटेड बाय एजाइल डेवलपमेंट have been around for years, even decades। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैं कहना चाह रहा था कि देखें ये सर्वेंट लीडरशिप वाली बात मिसाल के तौर पे प्रमोट तो यहाँ की जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट एजाइल नहीं लेके आया। ये तो सालों पहले, डिकेड्स पहले हमें सोशल साइंटिस्ट ने कहा कि अपने लोगों का ख्याल रखो, लोगों को एम्पावर करो, ये करो वो करो। दिस इज नॉट क्लासिकली, एजाइल ने तो नहीं इजाद किया इसको। सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था, इन्होंने अपने आप को उसके अराउंड डिजाइन कर लिया। मतलब ये कि जब वो एग्जिस्ट करता था सिस्टम तो आपको नजर आता था, आपके पास ऑप्शन थी, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें, करें तो कुछ फायदे हो जाएंगे, नहीं करें तो नहीं होंगे, मगर आप पे पाबंदी नहीं थी। अब जब एजाइल मेथड की बात करते हैं तो एजाइल मेथड इज डिजाइन्ड अराउंड दोज थिंग्स। अगर वो चीजें नहीं होंगी, अगर आप सर्वेंट लीडरशिप अप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप डेलीगेशन नहीं करेंगे, अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे तो एजाइल चल ही नहीं सकता। मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा कि जनाब ये तो आप ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं, सर्वेंट लीडरशिप ये सब चीजें जो आपने पढ़ाई हैं ये तो हमें पहले से आती हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आती होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर पढ़ी होंगी। बट द क्वेश्चन इज इट मैंडेटरी फॉर यू टू अप्लाई? कहते नहीं। मैंने कहा तो आपने कभी इनको इस्तेमाल किया भी नहीं होगा, मतलब कभी फेवर के तौर पे कर लिया कि हाँ यार चलो देखते हैं,
वैसे तो इस्तेमाल नहीं किया होगा, और अगर किया होगा तो शायद फायदा भी कोई ना कोई उठाया हो, लेकिन एज सच मजबूरी के तौर पे आपने इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब जब मैं एजाइल में आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं तो ये आपकी मजबूरी है। एजाइल में आप इन अपने वे ऑफ वर्किंग को तो बदलें और वो जो ट्रेडिशनल थॉट है उसको खत्म करें और इस तरह सोचने की कोशिश करें, और इस तरह अपना आप पूरा टेम्परामेंट चेंज करना होगा, अपना पूरा मैकेनिज्म, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग बदलनी होगी। तब कहीं जाके आप लोगों के ऊपर एतबार करना सीखेंगे, डेलीगेट करना सीखेंगे, उनको फैसिलिटेट करना शुरू करेंगे। तो ये जो बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, माइंड सेट बदलने की बात है। So many of the individual principles and practices that are promoted by agile development have been around for years, even decades. Each of the agile methodologies combines both old and new ideas into refinement that are certainly greater than the sum of their parts. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नए और पुराने तमाम आइडियाज को एजाइल ने पकड़ के कर लिया इकट्ठा। अब ये आटा जिस तरह से गूंदा जाएगा उसी तरह की खूबसूरत शक्ल बनेगी ना। तो ये जो सब चीजें इकट्ठी की हैं एजाइल ने, इन्होंने क्या किया कि इसमें सिनर्जी क्रिएट कर दी। क्या आप में से कोई मुझे सिनर्जी का मतलब बयान कर सकता है? प्लीज रेज हैंड। सिनर्जी हम किसे कहते हैं? जी रिजवान साहब पहले आप बताइए। जी रिजवान साहब। हेलो जी रिजवान साहब। जी, आवाज एक कम हो गई थी। सिनर्जी सर बेसिकली ये है कि आप इस तरह से यानी मुख्तलिफ लोगों की जो स्ट्रेंथ है उनको इस तरह से कंबाइन करते हैं कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो उनके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के सम से भी बढ़ जाती है। जो आपका वो जो इंडिविजुअल इनपुट है उसकी निस्बत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, मतलब इत्तेफाक में बरकत है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। हाशिम साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाशिम साहब। जी सर, बिल्कुल यही डेफिनेशन है ओके। कि जो है ना सारे टीम जो है मोटिवेटेड हो और एक पेज पर हो, सिनर्जाइज हो तो आउटपुट ज्यादा आएगी। जबरदस्त जबरदस्त। मुस्तफा साहब, मुस्तफा सईद। सर आपकी टीम की इन्वॉल्वमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि सिनर्जी के वो कंस्ट्रक्टिव उसमें आए आपके पास ना, चीजें पॉजिटिव वे में जाएं और उसका पॉजिटिव आउटपुट हो। पॉजिटिव और मल्टीपल उससे फायदा। मल्टीपल मतलब मल्टीपल चीजें एक साथ चल रही होंगी तो टीम पैरेलल में काम कर रही होगी, उसको फायदा ही होगा। हाँ, नहीं मेरा पॉइंट कुछ और था। सिनर्जी का मतलब एक बड़ा इसका आसान तरीन डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, और मैं मुस्तफा साहब आपसे कहूंगा कि इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। 1 और 1 11 कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? सर 1 और 1 11 इस तरह होंगे कि दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो मिल के आपको पॉजिटिव वो देंगी। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। बिल्कुल, दिस इज नॉट सिंपल समेशन, मगर आपने अपने सारे लोगों की अपनी अपनी खसूसियात में से बेहतरीन खसूसियात को इकट्ठा करके उभार के एक ऐसा परसोना क्रिएट करना है जो सभी कुछ कर सकता हो। इसका मतलब है कि वो जो आपके 4 या 5 या 10 लोग हैं उनकी टोटल काबिलियत का सम भी कर लिया जाए तो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर आपका ग्रुप होगा। ठीक है जी। सिनर्जी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि दूसरों के साथ मिलकर जब आप काम करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा ना हो कि उसका और मेरा काम मिलके टोटल इतना काम बन जाए, बल्कि वो उससे कई गुना ज्यादा बन जाए। दैट इज सिनर्जी। तो बेशक आप सब ने जो जो भी डेफिनेशन इसको डिस्क्राइब किया बहुत अच्छा किया, और दैट इज वेरी वेल डन। मगर सिनर्जी इज इंपॉर्टेंट। सिनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना और सिनर्जी क्रिएट करना ये बहुत जरूरी है। Methodologies have packaged together various customer management and in some cases engineering practices and principles.
अब गौर कीजिएगा, एजाइल मेथोडोलॉजीज में उन्हें एक ऐसा कैप्सूल बना के आपको दिया कि कस्टमर भी अंदर, उसकी मैनेजमेंट भी, मतलब सब चीजें जो हैं आपने एक ऐसे जबरदस्त तरीके के साथ उनको पैकेज कर ली हैं कि अब इस फार्मूले के तहत आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं. That helps guide team through the process of rapidly planning and delivering working testing products. सॉफ्टवेयर का लफ्ज मैं नहीं बोल रहा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा, सॉफ्टवेयर का लफ्ज लिखना ही नहीं चाहिए. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी टीम जो है उसके लिए ऐसी एजाइल इंस्ट्रक्शंस तैयार होनी चाहिए कि जिनको वो फॉलो करते हुए काम ज्यादा एफिशिएंटली और तेजी के साथ कर सके. ये है जी, मतलब जो हमने कहा कि एजाइल मेथोडोलॉजी का मकसद क्या है. उसका मकसद है कि एजाइल के काम के तरीके का एक क्या कहते हैं गाइड बना दे आपको, जिसको आप एज अ टीम सारे लोग समझें, पढ़ें और उसके हिसाब से अमल करें. यहाँ तो बात हो गई एजाइल की मेथोडोलॉजी और उसकी जनरल. एजाइल वर्सेस ट्रेडिशनल वाटरफॉल जो मेथड होता है, ट्रेडिशनल को वाटरफॉल भी कहते हैं, या एक और भी नाम होता है, क्या कहते हैं ट्रेडिशनल, हाँ जी ठीक है, ट्रेडिशनल है, वाटरफॉल है, या वो एक लफ्ज मैं और भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे ज़हन से निकल गया. ट्रेडिशनल क्या है? सीक्वेंशियल कहते हैं. हाँ जी, सीक्वेंशियल भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने. प्रिडिक्टिव, वो जो लफ्ज मेरे ज़हन में था वो था प्रिडिक्टिव. प्रिडिक्टिव, ओके. अच्छा जी, अब बात ये है कि यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, इस ये जो ऊपर स्लैंग लिखा हुआ है, यू बिल्ट व्हाट आई आस्क्ड फॉर नॉट व्हाट आई वांटेड. ये आपके कस्टमर की अक्सर आर्गुमेंट ये होता है कि भाई ये तो मैंने बताया था ना तुम्हें, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो तो तुमने नहीं मुझे बना के दिया. और भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं? आप जो मुझे बता रहे हैं मैं तो वही करूंगा. दैट इज द प्रॉब्लम जो कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है. एजाइल के अंदर हम उस पर रिलाय नहीं करते जो कस्टमर बता रहा होता है. जो कस्टमर बता रहे हैं हम उसको सुनते हैं, हम उसको क्वेश्चन करते हैं, हम उसे फर्दर एलेबोरेट करते हैं, और हम. हेलो जी जी जी, वालेकुम सलाम. सर, अपना माइक बंद कीजिएगा. हाँ जी, अल्लाह का शुक्र. जी यार वो असल अच्छा जी, अपना माइक जरूर बंद कर लिया करें जो लोग ऑफिस अटेंड कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के लिए डिस्टरबेंस होती है थोड़ी. अच्छा जी, यू बिल्ड व्हाट आई आस्क्ड फॉर एंड नॉट व्हाट आई वांटेड. ये बात तो आपको समझ आ गई कि कस्टमर ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा था वो तो तुमने बना दिया, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो तुमने नहीं बनाया. उसकी चाहत को आप कैसे जानेंगे? आपने स्टेक होल्डर के साथ कैसे एंगेज होना है. एक चीज होती है जी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एक होती है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन. गैदरिंग का मतलब तो यूं समझ लें कि मैं आपके पास जाता हूं कि मुझे अपनी फाइलें पकड़ा दें. आप सब लोग अपनी अपनी फाइलें हाथ में रख के खड़े हुए हैं, मैं आके कलेक्ट करता चला जाता हूं. यह है कलेक्शन. कलेक्शन वाला कोई बहुत ज्यादा जज्बाती तरीके के साथ आपसे ये नहीं कहेगा और कोई चीज तो नहीं है, और कोई फाइल है तो वो भी दे दें, और आपका ख्याल क्या है वो भी लिख के दे दें. ऐसा नहीं करेगा. तो अमूमन जो ट्रेडिशनल में होता है वो यही काम होता है, डाटा गैदरिंग होती है. वहां डाटा एलिसिटेशन नहीं होती. वहां पे हो जाता है हाँ जी आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, सबकी बातें नोट की, लिखी, उससे फिर उससे बना के एक डिजाइन बनाया और हो गया. लेकिन हम ये नहीं चाह रहे एजाइल में. हम ये नहीं चाह रहे. हम क्या चाह रहे हैं कि एलिसिट करें. जो बंदा वो सोच रहा है या वो चाह रहा है उसके दिमाग में घुस के कुरेद के वो चीज निकाली जाए, उससे कंफर्म की जाए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाए और फिर उसको दी जाए. मतलब आप उसके दिमाग में एंटर हो रहे हैं, आप उसकी जुबान पे सिर्फ रिलाय नहीं कर रहे, लेकिन
जो कुछ भी आप उसके दिमाग से निकाल के लाते हैं उसको वेट वो ही करता है। वो जो नहीं बयान कर पा रहा, आपने उस चीज को उस शक्ल में पेश कर दिया कि जिस तरह उसको बयान करना चाहिए था, और उससे कंफर्मेशन मांग ली, क्या ये चाहते हो? और अगर तो वो कहेगा कि हाँ मैं यही चाहता हूं, तो फिर ये उसमें एंटर हो गया। देखिए, आप इसको जरा देखें कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हमारी कमिटमेंट्स होती हैं वो जरा और किस्म की होती है। एक वन ऑफ द कंडीशन जहां आपने पढ़ी है, जो वैल्यूज हैं मैनिफेस्टो की, वो यही कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट देन जो आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है। कस्टमर के ताल्लुक से ज्यादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई शराइत। किसके दरमियान है जी? कस्टमर और मेरे दरमियान है ना कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं, वी कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कौन सी क्यामत आ गई है? तो इसका मतलब है बी हेल्पफुल टू योर कस्टमर, और उसको आप रास्ते दिखाएं, आप उसको समझाएं, आप उसका दिमाग अपने वो ही शुड स्पिल हिज बीन्स। ठीक है जी, चीज सामने आनी चाहिए और एग्री होनी चाहिए, और उसको हम रीनिगोशिएट कर लेंगे। अगर 4 पैसे ज्यादा लगे तो वो भी कर लेंगे। जी अरशद साहब। सर मेरा क्वेश्चन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में है, नहीं है जो आप पढ़ा रहे हैं। सर ये जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो फॉन्ट है, उसका जो कलर है, और जो आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर है, जी वो सर जी। आपस में ना ब्लर हो जाते हैं, तो वो काफी डिफिकल्टी होती है सर उनको पढ़ने में। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अभी मैं कोशिश करूंगा इसको इम्प्रूव कर दूं, लेकिन चूंकि सर ये थैंक यू स्लाइडें पहले की बनी हुई हैं तो इनको बॉस। काफी करना पड़ेगा। चलिए मैं देखता हूँ। सर थैंक्स अ लॉट। राइट जी, तो ये बात हो गई। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस और मैनेजर्स के हवाले से, फोकस्ड ऑन कंप्लायंस एक्टिविटीज नॉट डिलीवरिंग वैल्यू। प्रोजेक्ट मैनेजर जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट का है, वो कहता है जी मैं काम काम ये देखो, मैंने 10 एक्टिविटीज करनी थी, मैंने 10 कर ली। ओ भाईजान, आपने 10 एक्टिविटीज के नतीजे में जो डिलीवरेबल निकालना था वो भी निकाल दिया, लेकिन क्या वो डिलीवरेबल वो वैल्यू दे पाया जिसके लिए उसको हमने बनाया था? पता चला नहीं, वो वैल्यू तो नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? मतलब ये कि एक आदमी के दिमाग में से आपने उसकी रिक्वायरमेंट निकाली और फिर उसको उसके सामने पेश की, और फिर भी वो उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो ये तो कोई गड़बड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही रिक्वायरमेंट्स ही नहीं उठाई, आपने फेस वैल्यू पे चीजें उठा ली हैं, वो आपने वो बना दी हैं और बना के डिलीवर कर दी हैं, और अगले को समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसे क्या करूं। ये तो मैं उसका तो वही आर्गुमेंट है, दैट्स नॉट व्हाट आई वांटेड। फिर दे आर प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉट प्रोजेक्ट मैनेजर्स। वो लोग सिर्फ, मैं इस बात पे बड़ा पक्का बिलीव करता हूं कि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर होते ही नहीं है। आप जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्या आप लोग सब जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, क्या आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी अथॉरिटीज हैं? मैं ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर भी नहीं होती हमारे पास अथॉरिटी। हमें सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशनर के तौर पे रखा जाता है, प्लान भी करने की इजाजत नहीं दी जाती प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, विच इज क्रिमिनल इवन इन ट्रेडिशनल सेटअप। ये तो उसकी भी गलती है। लेकिन खैर एनीवेज, वेदर प्लान में प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल है या नहीं है, लेकिन आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके पास ताकत नहीं होती, जो मेन फैसले हैं वो ऊपर से आते हैं। ये सिर्फ निजाम संभालने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया गया है। एजाइल मेथड क्या करते हैं? उनकी कोर में आर ऑल अबाउट मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्रोजेक्ट। उनमें और कोई चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि बड़ा सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। वो ये देखते हैं कि उनके कोर प्रिंसिपल ही ये बन गया है कि हम तब्दीली को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। शॉक एब्जॉर्बर वाला काम। मतलब आपका जब फोकस इस बात के ऊपर है, कस्टमर को खुश रखना है, कस्टमर की बताई हुई हर तब्दीली को एडजस्ट करना है, उसको उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी। पता लगे जी आप कस्टमर के खिलाफ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें और वो मीटिंग्स के अंदर तू मैं शुरू हो जाए। नो,
we have to give precedence to what the customer is saying all the time and advise him and suggest to him कि जनाब ये काम आपने पहले तो नहीं बताया था, लेकिन आप जो कह रहे हैं सर आंखों पे, लेकिन इसके लिए हमें प्लान में ये तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और कॉन्ट्रैक्ट में ये तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। एजाइल टेक्निक्स रियलाइज दैट डॉक्यूमेंटेशन इज अ पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखें कितना इंपॉर्टेंट, देखें ये मैं नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंटेशन होनी नहीं चाहिए, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे डाल देना, खत कर डाल दो, मुझे ईमेल कर देना, मुझे ये प्लान बना के। आपने कितने प्लान जो हैं जो अलमारियों में लगे हुए हैं पिछले सदियों से, कितने प्लान निकाल के आज तक पड़े हैं? या फॉर दैट मैटर जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग भी होता है उसका भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना होता है, मुझे नहीं पता कि कभी किसी ने खोल के भी देखा हो। वो सिर्फ खानापुरी के तौर पे कागज भरे जाते हैं और उसको रख दिया जाता है। दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। जो चीज रिक्वायर्ड है वो हम कर नहीं रहे। तो बुनियादी तौर पे एजाइल ये कहता है कि सिर्फ वो करो जो रिक्वायर्ड है। सो मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट टू, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं कि उस डॉक्यूमेंटेशन को भी जो होनी है ऐसी हो जो वाज़ेह हो और सबके सामने हो। मतलब उसकी शक्ल बदल दें, कागजों में लिख के भेजने की बात से ज्यादा बेहतर ये है कि आप उस चीज को हर वक्त एक्सेस दे दें, हर कोई हर वक्त ट्रांसपेरेंटली उसको देख सकता हो। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत किसी हद तक कम हो जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing and controlling of the resources to accomplish relatively short-term objectives to meet specific goals and objectives of the overall organization। ठीक है, ये आप नॉर्मली ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये काम है कि हम प्लान करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको फिर एग्जीक्यूशन में डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रिसोर्सेज को प्लेस करना और सब कुछ, और ताकि हमारा जो मकासद है वो पूरे हों, जिससे हमारे ओवरऑल बड़े मकासद ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हों और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। यही है हमारा वाटरफॉल का आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मकसद। तो वाटरफॉल क्या कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स एक दफा फाइनल कर लो और बेसलाइन कर लो, लॉक कर दो, और फिर चेंज कंट्रोल के जरिए इन चीजों को काबू में किया जाए। और फिर वो कहता है जी फॉल बैक ऑन द डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट। उसके बाद किसी की नहीं सुननी, जो लिखा गया है उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को बार बार रेफर करो और उनके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पे अमल पैरा हो जाओ। एनफोर्स द चेंज कंट्रोल जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है। ठीक है, ये बातें कानूनी तौर पे बड़ी जामे लगती हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियों में फड्डा करवाने के लिए काफी है। अगर आप देखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें दोनों पार्टियां, और इस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि उन दोनों ने बनाया है आपस में, उसको लड़ाई का जरिया बनाने के बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड कर लिया करें अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। रिजिड प्रोसीजर्स जो हैं वो वाटरफॉल में रिक्वायर्ड होते हैं, नीडेड टू रेगुलेट चेंज। मतलब अगर आपने पूरा प्लान ही एक दफा बनाया है तो फिर आपने उसके पकड़ के रखना है उसको, तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको चेंज कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, दैट आर मींस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर, डिसिप्लिन, कानून। इंक्रीज कंट्रोल रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशंस माइट बी रिजिड, स्टैटिक हायरार्कीज होती हैं उनकी, और एम्प्लॉयज आर इंटरचेंजेबल पार्ट्स। अच्छा, तुम अच्छा काम नहीं करते, तुम्हें निकाल देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की इतनी बड़ी मशीनरी में
एम्प्लॉय की कोई इतनी हैसियत नहीं समझी जाती, उसको किक मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि हम जो एजाइल में बात करते हैं, हम एम्प्लॉय को एक आला पेडेस्टल पे रख रहे हैं, उसको हम एम्पावरमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व प्राइमरीली थ्रू रिडक्शनिस्ट टास्क ब्रेकडाउन एंड एलोकेशन। रिडक्शनिस्ट क्या है कि अच्छा यार, प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए एक एक करके चीजों को थोड़ा थोड़ा करो। प्रॉब्लम जो की कॉजेज हैं एक एक करके दूर करो। जबकि हम प्रॉब्लम को एजाइल पर्सपेक्टिव में देख ही नहीं रहे कि उसको रीएड्रेस करने की जरूरत है या रीडिजाइन करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट्स एंड रिस्क आर एडिक्वेटली प्रिडिक्टेबल टू बी मैनेज थ्रू कॉम्प्लेक्स अपफ्रंट प्लानिंग। मतलब ये समझा जाता है ट्रेडिशनल में कि प्रोजेक्ट्स और रिस्क जो हैं वो प्रिडिक्टेबल है, मतलब किसी काफी हद तक, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन एजाइल में हम कहते हैं कि हम कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं, हर चीज बदल सकती है। और है जो हमें खैर ये तो हो गई वफा तक की बातें हैं, ये क्यों होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम has yet to embrace many of the principles and practices। वो जो मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ चीजें तो ऑप्शनल समझी जाती हैं, जो चीजें ऑप्शनल समझी जाती हैं आम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो एजाइल में मैंडेटरी हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऐसी चीजें हैं वो अभी तक ट्रेडिशनल ने प्रॉपरली एम्ब्रेस नहीं की। मिसाल के तौर पे एक एवरेज टीम जो होती है वो उसको नहीं पता कि आइटरेशन में कैसे काम किया जाता है। दे डू नॉट डिलीवर इंक्रीमेंटली, दे डज नॉट प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस प्लानिंग नॉर ऑटोमेट टेस्टिंग। इनमें से कुछ भी नहीं वो कर रहे होते ट्रेडिशनल के अंदर। These practices have been combined in a manner that can more easily be understood and adopted। अब जहां एजाइल में आपको इन चीजों की जो वक़्त और कीमत का अंदाजा होगा, trend appears to be rapidly changing for the better, especially during the last several years। तो ये बात जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि एजाइल आ रहा है, एजाइल आ रहा है, तो बुनियादी तौर पे वो यही है। हो सकता है आपको ना महसूस हो रहा हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप सुनने की कोशिश करें तो आवाज तो आ रही है। आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें, आप पूरे जितने भी टेक्निकल एरियाज हैं, आप उनके पेपर्स को पढ़ें, आप उनके मैगजीन्स को पढ़ें, एवरीथिंग इज गोइंग एजाइल। तो इतनी तेजी से काम होने वाला दौर और उसके अंदर एक टर्म आपके ऊपर बार बार स्ट्राइक कर रही है और आप मानने से इनकार कर रहे हैं, तो ये गालिबन दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। Agile methods have generated quite a bit of controversy within the industry and community। लाजमी बात है कि वही बात है ना जी, अगर सॉफ्टवेयर वाला कर रहा है तो हम उसको अजीब निगाहों से देखते हैं, ये पता नहीं क्या करे जा रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ऐसा। They have continued to deliver higher quality systems in less time than traditional process। अब सॉफ्टवेयर वाले जो हैं इस मेथड के तहत काम करते करते मुद्दतों से अच्छी क्वालिटी और तेज काम दे रहे हैं। हम ये कह के जान नहीं छुड़वा सकते कि वो तो सॉफ्टवेयर वाले हैं ना, वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे ये प्रॉब्लम नहीं है? हमारे तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप क्वालिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में ये ज्यादा प्रॉब्लम है क्वालिटी के। इट हैज रिसेंटली बीन अडॉप्टेड आउटसाइड ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बाहर भी लोगों ने इसको लिफ्ट करानी शुरू की है, तो इसके नतीजे में अब लोगों को ये जरूरत महसूस हो रही है कि ऐसा हो सकता है। There are
अच्छा जी, तो दे आर ऑल अबाउट मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रोजेक्ट्स। जो एजाइल मेथड्स हैं वो तब्दीली का असर प्रोजेक्ट पे कैसे पड़ेगा। व्हेन चेंज अकर्स दे अलाउ द चेंज टू अकर इन एन ऑर्डरली मैनर। मतलब जब तब्दीली आए तो हम उसको एक ऐसे ऐसन तरीके के साथ उस तब्दीली को डील करें कि उसकी वेव्स का पता ही ना चले, वो हमारे नेचुरल वे ऑफ वर्किंग का एक पार्ट हो। अटेम्प्ट टू कंट्रोल द रिस्क दैट अकर्स फ्रॉम दीज चेंजेस। इन तब्दीलियों की वजह से जो नए रिस्क अकर हो रहे हैं या नए रिस्क होने के इम्कानात हैं उनको साथ साथ ही रिजॉल्व करते किया जाता रहे। और ये जो हम हर आइटरेशन की अलग अलग प्लानिंग करते हैं उसके साथ ही उसके रिस्कों का भी इलाज करते हैं, उसके साथ ही उसकी क्वालिटी का भी इलाज करते हैं। सब कुछ उस छोटे से कैप्सूल के अंदर ही होता है। आइटरेशंस की बात, इनिशियल कर्नल, एडिशनल आइटरेशंस, ऐड लेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले तो एक बेस बनाते हैं, फिर उसके अंदर आइटरेशंस ऐड करते चले जाते हैं और इस तरह लेयर बाय लेयर हमारी आइटरेटिवनेस चलती रहती है। जनरली हमारी आइटरेशन का साइज छोटा होता है। प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हम सर्टेन अकम्पलिशमेंट्स की तरफ देखते हैं कि हमारे ये फीचर्स या फंक्शंस होने चाहिए, अचीव हो जाने चाहिए, या उससे कोई डिलीवरेबल एसोसिएटेड होता है उसको देखते हैं कि वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल डिजाइन बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर। हम डिजाइन ही ऐसा करना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन के अंदर हम क्विकली अडॉप्ट कर सकें। मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि मेरे लिए एक बिल्डिंग बनाओ, आप उसे पूछते हैं कि क्या डिजाइन है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उसने कहा मुझे कोई नहीं पता, बस तुम बिल्डिंग बनाओ। अच्छा जी, कितनी स्टोरी होंगी नहीं पता। अब आप मुझे बताइए एज ए इंजीनियर, हाउ इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस जिसकी हाइट नहीं पता, कितनी स्टोरीज होंगी ये नहीं पता, तो क्या मैं उसको बनाना शुरू कर सकता हूं? क्या ख्याल है आपका? कौन जवाब देगा जी इसका? तो सर उसका ना पहले व्हाट आई बिलीव इसके एक डिजाइन पेपर वर्क करके तो उसको फिर कस्टमर के सामने रखना पड़ेगा और उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ऑब्वियसली दैट वी कैन प्रोसीड। सर ये तो ट्रेडिशनल हो गया, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन वो बता ही नहीं पा रहा कि कितनी फ्लोर। आपकी बात से मैं एग्री। फिर वो चीज हाँ जी, सर फिर चीज को हम कुछ स्केलेबल एंगल से बना सकते हैं कि हम अपने पुराने जो नॉलेज बेस है ना उसके हिसाब से जी एक जी चीज जी। ऐसी स्टार्ट करें या बेस ऐसा बनाएं जिसके ऊपर हम जो बिल्डिंग है ना वो लेट से मल्टीपल स्टोरीज को भी सपोर्ट करती हो, ना भी बनानी हो तो भी खैर है, वो कुछ इस एंगल से देख लें। असल में पता है कमाल क्या है इंसानी दिमाग का, वो ये है कि पहली दफा आप कभी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं दे सकते। पहली दफा हर इंसान जो है वो ट्रेडिशनल थिंकिंग जो उसका दिमाग कहता है वो जवाब देता है। दूसरी तरफ आपको सोचने में मजबूर किया जाता है, तब आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। यस ऑफ कोर्स, अगर मैंने ये काम करना है तो मुझे बुनियाद इतनी मजबूत रखनी पड़ेगी कि वो जितनी भी मंजिलें कहे बनाने को मैं उस पर बना सकूं। अब मुझे इस बात का तो अंदाजा होता ही है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, ये माउंट एवरेस्ट जितनी बिल्डिंग तो नहीं बनाने को कहेगा, इतना माल ही किसी के पास नहीं होगा पाकिस्तान में। खैर, हमें ये अंदाजा हो सकता है लोकेलिटी के हिसाब से, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में बनाना है तो उसके अंदर एक खास लिमिट से बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती, या वट एवर। सो आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट क्या है कि अगर मुझे मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग और द हाईएस्ट अलाउएबल लिमिट बनानी पड़ जाए तो मैं अपने बेस को इतनी स्ट्रेंथ दूंगा कि उसके ऊपर उसको कितना भी उठाया जा सके। आपने अक्सर ये देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की होती हैं, आपने ये देखा होगा कि वो लोग जितनी भी स्टोरीज 2 3 4 5 बनानी है बनाते हैं, और उसके ऊपर छत पर अगर आप कभी जाएं तो वहां पे उनके जो क्या कहते हैं पिलर्स पिलर्स,
वो बाहर निकले होते हैं और उनके सरिये निकले हुए होते हैं, अक्सर देखा होगा आपने। ये क्या चक्कर है? ये इसलिए होता है कि उन्होंने डिजाइन ज्यादा के लिए किया हुआ है, बनाई 4 या 5 फ्लोर्स हैं, फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो वो उसको एक्सटेंड करने के लिए वो पिलर्स उन्होंने निकाले हुए हैं और उसके साथ वो ऊपर को चढ़ा देंगे, तो इस तरह वो और मजीद बना सकते हैं। तो लेकिन उसकी भी कोई हद होगी। लेकिन ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि कस्टमर की नीड के मुताबिक हमें तैयार होने की जरूरत है। ये एक तो ये मेरा पॉइंट आ गया। Flexible and extensible design because requirements are not clear. Empowered team decide how best to implant, तो गलत है लफ्ज, implement होना चाहिए था। So हमारी जो टीम है, आपने उसको एम्पावर करना है कि वो काम वो होगा जो कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक है, लेकिन काम करने का तरीका वो होगा जो मेरी टीम कहेगी। मेरी टीम को कस्टमर नहीं बताएगा या स्क्रम मैनेजर नहीं बताएगा कि तुम इस काम को ऐसे करो। टीम खुद बताएगी कि उन्होंने वो काम कैसे करना है। टीम हैज द डिसीजन पावर, दे आर एम्पावर्ड। दैट वाज द पॉइंट कि टीम को हमें उसकी वो इज्जत देनी होगी अगर हम उससे तेज काम करवाना चाहते हैं और अच्छा काम करवाना चाहते हैं। फिर जनाब पर्सनल कम्युनिकेशन या सॉफ्ट स्किल जो है, ये तो आपके लिए वैसे जो कि हम सब मानते हैं और जानते हैं कि जनाब ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और आम जिंदगी में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना एजाइल की वजह से। तो इसमें ना सिर्फ ये कि वो कम्युनिकेशन जो हम आमतौर पे करते हैं रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स की सूरत में, बल्कि ऐसी कम्युनिकेशन भी जो कि नॉन वर्बल है। मिसाल के तौर पे बॉडी लैंग्वेज है, मैंने मुंह बना दिया, मैंने कोई ऐसी कर, दिस ऑल मैटर्स विद इन द टीम, दिस मैटर्स अ लॉट। बहुत सी बातें हम लिख के पेश नहीं करते, हम अपने एक्शन से जाहिर कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और यहाँ पे तो उसने लिखा है नो रिटन डॉक्यूमेंटेशन प्लीज, मैं इसको एग्री नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि मिनिमाइज डॉक्यूमेंट टू द मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन को कम करने की कोशिश की जाए। और वो जो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है उसको तो खत्म करें, वो जो फजूल किस्म की रिपोर्ट्स इधर से उधर जा रही हैं, लेकिन स्टिल देयर माइट बी सम डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। मिसाल के तौर पे अगर से कि मैं एक एजाइल प्रोजेक्ट कर रहा हूं और मेरी इटरेशन चल रही हैं और दीवारों पे इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी तो एक तरह के डॉक्यूमेंट्स ही हैं। उनका रिकॉर्ड कहीं कीप किया जाए। अगर मैं उनकी तस्वीरें खींच लूं रोज के रोज, सारी दीवारों की तस्वीरें खींच लूं, तो ये भी तो एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन ही है। सो इस तरह से रिकॉर्ड कीप किया जा सकता है। जी सर। सर इसमें मैं थोड़ा सा मतलब समझना चाह रहा हूँ। हम मतलब बार बार ये डॉक्यूमेंटेशन कम करने की बात करते हैं, फिर साथ करने की बात करते हैं, और फिर जो कस्टमर के साथ फीडबैकिंग है या इवन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी बार बार हम हर आइटरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं बार बार। तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वो पॉसिबल कैसे होगा ना? मतलब हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हम उसकी चीज को नया भी बना रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट भी कम करना है। तो ये मैं थोड़ी सी रोशनी। बात ये थी कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें वो प्रोजेक्ट के अंदर करें। जहां तक मेरा और कस्टमर के दरमियान का ताल्लुक है, वो तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, उसको मैं खत्म करने को नहीं कह रहा। लेकिन साथ मैंने एक और बात भी की, मैंने ये भी कहा कि आपके दरमियान ये लड़ाई की वजह नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी द रीजन फॉर कंफ्लिक्ट, इट शुड बी फॉर अकोमोडेशन। आप कस्टमर के लिए विंडोज खोल के बैठे हैं कि सर और बताएं और कोई चीज तब्दील करनी है। जो ही वो कोई चीज तब्दील करेगा, मैं उसको डिजाइन करके म्यूचुअली उससे एग्री करवा के उसको कॉन्ट्रैक्ट में डलवाऊंगा। दैट इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट विल वर्क। हम दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट साथ साथ होते रहेंगे, बजाय इसके कि ये फड्डे लेके हम कोर्ट्स में जाएं, आर्बिट्रेशन में जाएं। हमें उन मसाइल को, मतलब मुझे ये
इसके लिए तैयार होना होगा कि कस्टमर को अकोमोडेट करना है। अच्छा, अब उसका मतलब ये कतन नहीं है कि कस्टमर कहता जाए तब्दील करते जाओ और मुझे नुकसान होता जाए, ऐसी बात भी नहीं है। जब मैं कोई चीज म्यूचुअली एग्री करूंगा तो वहां पर रीनिगोशिएट करूंगा कि जनाब ये जो आपने तब्दीली बताई है इसके मुताबिक काम करने के लिए मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, इतना टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, और ये इस तरह से इसका स्केड्यूल होगा। लाजमी बात है जब कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होता है तो तमाम चीजें रिवाइज होती हैं। तो आपसे बताएंगे। अच्छा जी सर। सर इसमें ना मतलब ये जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट वाली चीजें होती हैं, अब उसमें वो जिस तरह आप अभी हम वो बात कर रहे थे कि अगर कोई ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम चेंज करने की बात करते हैं, बड़ा वो स्ट्रिंजेंट किस्म का प्रोसेस होता है कि जी आपको एक चेंज रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी, उसके ऊपर वैल्यूएशन होगी और वो सारा कुछ करते हैं, लंबा सारे प्रोसीजर में हम घुस जाते हैं। तो अब इस केस में हम मतलब कस्टमर के साथ एक शायद एग्रीमेंट का पार्ट भी होगा कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी कॉस्टिंग का पार्ट है, अब कॉस्टिंग अगर चेंज हो रही है और मैं अगर बार बार चीजें चेंज कर रहा हूँ तो मैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ ना उसकी। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा चेंज, कस्टमर डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है ना। मैंने कहा जो कुछ हो रहा है, अच्छा हाँ मतलब हर जो फॉर दैट मैटर आइटरेशन कंप्लीट हो रही है और जो चीजें हम डिलीवर कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है। या जो बल्कि सर मुझे तो ऐसे फील हो रहा है, सॉरी सर फिर बात काट रहा हूँ, कि इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें तो हमारे रिपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, लेट्स से मंथ बाद है तो मैंने उसको एक मंथ की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दे दी। अब तो मैं उससे शायद डेली की अपनी जो वर्किंग है उसकी शायद रिपोर्ट भी दे रहा हूँ, ना उसे दे रहा हूँ, अपनी टीम को भी दे रहा हूँ, उसे भी दे रहा हूँ और स्टेक होल्डर्स को भी दे रहा हूँ। मैं सबको मतलब वो जो इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो वो चाहे व्हाइट बोर्ड ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली कर रहा हूँ। कहाँ पे, स्क्रम में? जी यही एजाइल में ना, मतलब यानी लेट्स से अगर मैं डेली की अपनी वर्किंग की वो कर रहा हूँ और मैंने फिर प्रोग्रेस शो भी करनी है, तो मैं तो अपना व्हाइट बोर्ड ही चाहे दिखा रहा हूँ, चाहे वो चले ट्रेडिशनल पेज ना हो या रिपोर्ट ना हो ट्रेडिशनल, लेकिन मैं उसको किसी ना किसी फॉर्म में मेरी तो मैसिव रिपोर्टिंग हो रही है। एग्जैक्टली मैं यही आपको समझाना चाह रहा था, जिस वजह से मैं कह रहा था कि नो रिटन डॉक्यूमेंटेशन। मैं मानता हूं कि ये जो इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स हैं, दिस इज ऑल द रिपोर्टिंग, दिस इज ऑल द रिपोर्टिंग। और इसके अलावा अगर कोई वो कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी कुछ चीजें तो वो भी होंगी ना। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आप डू अवे कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ना करता हो, तो कॉन्ट्रैक्ट और कुछ चार्टर मार्टर एक दो चीजें तो ऐसी होंगी, तो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन आसानी पैदा अच्छा इसमें एक और एंगल है, हम ना मतलब स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी वर्क कर रहे होते हैं ना। एक एंगल होता है हमारे सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, और उनके अगेंस्ट हमारे ऑडिट्स भी होते हैं, जो रेगुलेटरी भी कर रही होती है, हमारे इंटरनल ऑडिटर्स भी कर रहे होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डॉक्यूमेंटेशन को व्हाइट बोर्ड के ऊपर विजिबिलिटी, और जिसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे लेकिन हम चेंज भी कर रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग फॉर ऑडिटिंग पर्पस, यदि काम एक्चुअली जो चल रहा है वो सही हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहती है जाए? उसको रिकॉर्ड करते हैं सर, रिकॉर्ड करते हैं। दो तरीके हैं, एक तो ये है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप फिजिकली कर रहे हैं तो आप उसकी बाकायदा सारे रेडिएटर्स की तस्वीरें रोज के रोज खींचते रहें और उनको रिकॉर्ड में रखते हैं, और जो कोई आएगा वो उन्हीं की बुनियाद के ऊपर फैसला करेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, तो वो डिवाइस खुद ब खुद उसका रिकॉर्ड रखता है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ब खुद सारे डाटा उसने रिकॉर्ड में रखा होता है। जी जनाब, मेरा ख्याल है टाइम तो हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि आगे हम कंटिन्यू नहीं करते और आज क्लोज कर देते हैं। अच्छा जी, मैं एक दफा फिर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, प्लीज फॉर गॉड सेक आप लोग हाँ जी वो तुसी जेडे कॉल सेंटर माइक ऑफ कर लिया करें, अपना माइक ऑफ कर लिया करें। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सारी आवाजें यहाँ सुनाई देती हैं। एनीवेज जी, टुडेज क्लास इज ओवर। कल हम इंशाल्लाह फिर 2 बजे मिलेंगे, 2 से 3:30, और ये जहां मैंने छोड़ा है यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मोहित साहब, आपका कोई क्वेश्चन है, बोलिए। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि ट्रेडिशनल जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसमें हम लोग फिक्स कर देते हैं ना अपने जो भी चीजें, वेयर एज एजाइल में हम लोग ये नहीं करते। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर हम किस लेवल पे तो किसी चीज को फिक्स करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो ये तो मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, ये क्या चीजें होंगी। तो किसी लेवल पे हमें इसको मेरे ख्याल है। देखें, बात ये है कि मैं और आप बैठे
और हमने एक बात एग्री की, ये जो बात हमने एग्री की ये फिक्स हो गई, लेकिन ये हमने इस शर्त पे एग्री की कि इसको फिक्स ज्यादा देर नहीं रखना। अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ हुई और आप कोई तब्दीली बताएंगे तो हम फौरी तौर पे इसको रिवाइज कर लेंगे। और ये जो हर हफ्ते के हफ्ते हम इसको चलाए जा रहे हैं, ये रिवीजन इसकी कॉन्स्टेंटली हो रही है। जबकि जो आप ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं उसके अंदर एक दफा कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, एक दफा डॉक्यूमेंट लिखा गया तो हम कहते हैं खबरदार आप कोई ना इधर देखे। ये फर्क है कि हम बना तो कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं, कोई बुनियाद तो है जिससे हमने स्टार्ट किया, लेकिन उसको हम मुसलसल इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, अपडेट करते चले जा रहे हैं। तो हर वक्त हमारे पास एक फाइनल वर्जन जरूर होता है। आई एग्री विद दैट कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कहाँ है, आगे क्या करना है, उसकी पिक्चर होती है हमारे पास। बट एट द सेम टाइम वो इम्प्रूव होता रहता है। जो शक्ल आज है हो सकता है कल वो ना हो, परसों उससे भी डिफरेंट हो जाए। तो ये इसकी गारंटी कोई नहीं है कि कल क्या शक्ल होगी, लेकिन कोई ना कोई शक्ल हर वक्त एक एग्जिस्ट कर रही होती है। जी मोहित साहब ओके? जी जी सर, लेकिन इसको हम क्लोज कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं रोज नई शक्ल होगी, जब ये प्रोजेक्ट एंड होगा तो उस वक्त क्या होगा सर? जब कस्टमर जब सेटिस्फाई हो जाएगा, कस्टमर जब कहेगा कि जी मेरे सारे मकासद पूरे हो गए, अब आप छुट्टी करें, बात खत्म हो जाएगी। या जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं वो पूरी हो जाएंगी तो हम कस्टमर को कहेंगे सर और कोई हुक्म, वो कहेंगे नहीं नो मोर, खत्म होगी बात। ठीक है जी। तो कस्टमर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि चीज का कब खत्म होगी। ठीक है सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन थोड़ा सा डिले हमने कर दिया, लेट ज्यादा देर तक हमने कर लिया। इंशाल्लाह कल हम 2 बजे स्टार्ट करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।